Today we'll discuss hyperconjugation. Hyperconjugation is one of the electron displacement effects of covalent bonds, like index effect or resonance effect. So what is hyperconjugation? This is actually the interaction between the electrons of a pi system, that means system containing multiple bonds, and the adjacent sigma bonds, single HC bonds, the bonds between hydrogen and carbon of the substituent groups in organic compounds. These substituent groups should be linked to the unsaturated carbon. Like this, we'll take an example here. If I take propene, this is CH3, this is CH double bond CH2. So it is propene. So here this is the substituent, this is methyl group, alkyl group. ये alkyl group है. It has 3 CH bonds, CH bond, CH bond and CH bond. This carbon is linked to unsaturated carbon. So this carbon is linked to the unsaturated carbon, that means the carbon containing double bond. So it is a pi system, इसमें ये pi electrons हैं. So this जो ये CH bond है, CH sigma bond, that means these are sigma electrons. They will interact करेंगे with these pi electrons. ये इन pi electrons से interact करेंगे. So when these sigma electrons interact with the pi electrons, that is sigma electrons of the CH bond will interact with the pi electrons, the effect is known as, इसी effect को हम बोलते हैं, this interaction is known as hyperconjugation. इसको बोलते हैं hyperconjugation. So कैसे करेगा interact? Like this, interact करेगा like this. So I will show this by a different, like this. ये यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा. So we will get a new structure. This is structure number 1, for example. We will get, हम मिलेगा CH. यहाँ पर अब कोई बॉन्ड नहीं है, so यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा. यहाँ पर H और यहाँ पर H. यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड C. यहाँ पर एक ऑलरेडी बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड हो गई शिफ्ट यहाँ पर. So यहाँ पर C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. अब एक और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर. अब ये CH बॉन्ड जो है, ये यहाँ पर हो जाएगी डिलोक्लाइज, ये डिलोक्लाइज हो जाएगी यहाँ पर. सो विल गेट ए न्यू स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर हमें ऐसे बनेगी. सो दिस इज CH. यहाँ पर ये पॉजिटिव खत्म होगा क्योंकि यहाँ पर ये डिलोक्लाइज शिफ्ट हो गई यहाँ पर. सो यहाँ पर बनेगा H पॉजिटिव. यहाँ पर अब कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर H double bond C, single bond H2, like this. अब एक और स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर नंबर 3. अब एक और स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ डिलोक्लाइज हो जाएगी, ये CH बॉन्ड. सो विल गेट C H H, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा इस H पे. सो डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H2, like this. यहाँ पर ये बनेगी स्ट्रक्चर नंबर 4. सो यहाँ पर आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेक्ट हो गई, यहाँ पर इंटरेक्शन हो गई बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए पाई सिस्टम. इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इंटरेक्ट विद द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड. यानी सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए पाई सिस्टम, दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए पाई सिस्टम हो गए इंटरेक्ट विद द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ द सबस्टिट्यूएंट ग्रुप. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपरकॉन्जुगेशन. सो ये ऐसे भी हो सकता है, कभी ये पाई इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे विद द एटम हैविंग P, empty P, this empty P shell, P orbital. यानी कभी इंटरेक्ट कर सकते हैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम है, ये भी कभी इंटरेक्ट कर सकते हैं to an atom
विद एन अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, जिसके पास अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल होगा उसके साथ भी कभी इंटरेक्ट करेंगे। दीज द सी एच बॉन्ड, दिस सी एच बॉन्ड, फिर गलत हो गया। بیٛاکھ ٹاش چھُس دیُن۔ आज हम करेंगे डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, like inductive effect or resonance effect. So what is hyperconjugation? This hyperconjugation is actually the interaction between the electrons of a pi system. That means electrons of a pi bond, pi system, multiple bond, and the adjacent sigma bond. Adjacent sigma bond, that is single CH bond, yeah, HC bond of the substituent groups in organic compounds. सिंपली बोल सकते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ HC बॉन्ड एंड द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सिस्टम, द इंटरेक्शन इज नोन एज हाइपर, उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। या समटाइम्स हम बोल सकते हैं द इंटरेक्शन ऑफ HC बॉन्ड, देयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ HC बॉन्ड with an atom with an unshared p orbital। यानी कभी ये ऐसी बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद एटम हैविंग अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, जिसके पास अनशेयर्ड p ऑर्बिटल होगा। ये भी कभी केस हो सकता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। हम एग्जांपल ले लेंगे प्रोपीन, इसमें हम करेंगे डिस्कस, इसमें हम करेंगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश। प्रोपीन, सो आई राइट हियर दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अगर हम चेक करेंगे दिस प्रोपीन हैज दिस हैज डबल बॉन्ड यहाँ पर, सो दिस अनस्टेबल कार्बन इसके साथ अटैच है, ये सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। This methyl group has 3 CH bonds, and this has 3 HC bonds, जिसको बोलेंगे। Actually, these HC bonds, they are must in this effect, ये जरूरी है इसी HC bonds। अब ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं? These are sigma HC bonds, sigma HC bonds। ये कैसे करेंगे इंटरेक्ट विद दिस पाई सिस्टम? ये पाई सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? सो ऐसे करेंगे इंटरेक्ट, ये सिग्मा बॉन्ड ये डिलोक्लाइज हो जाएगी, यहाँ पर आएगी ये सिग्मा HC बॉन्ड हो जाएगी, डिलोक्लाइज शिफ्ट हो जाएगी, इसी को ये होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, दे विल ट्रांसफर, दे विल शिफ्ट ऑन कार्बन। सो वी विल गेट ए स्ट्रक्चर, हमें एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। दिस स्ट्रक्चर नंबर 1 वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर CH पे अब रहेगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज बॉन्ड है शिफ्ट टू दिस पोजीशन, दिस इज H, दिस इज H। यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा CH2, यहाँ पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब एक और हो जाएगा यहाँ पर, अब ये बॉन्ड ये HC बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, सो और वी विल गेट ए न्यू स्ट्रक्चर लाइक दिस, दिस इज CH। अब यहाँ पर बॉन्ड डेवलप होगा, यहाँ पर अब रहेगा H पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। अब यहाँ पर फोर्थ स्ट्रक्चर बनेगी लाइक दिस, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ पर होगा शिफ्ट डिलोक्लाइज हो जाएगा ये HC बॉन्ड यहाँ, सो विल गेट ए स्ट्रक्चर CH, यहाँ पर H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज फोर्थ स्ट्रक्चर।
सो ये दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया इनमें। यहाँ पर बन गई 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Hc बॉन्ड होते हैं, करते हैं इंटरेक्ट विद दिस with the pi system, with the pi electrons of the pi system. So अगर हम यहाँ पर देखेंगे this concept was, जो ये concept था, ये concept it is similar to, this effect is similar to resonance effect। ये बिल्कुल resonance effect को similar है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इन स्ट्रक्चर में, यहाँ पर हमें लगता है नो बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है एंड द हाइड्रोजन। यहाँ पर हमें लगता है नो बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एटम एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, देयर इज नो बॉन्ड। यहाँ पर अल्फा कार्बन एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, देयर इज नो बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन समटाइम्स it may also be called no bond resonance। ये हाइपरकोनिक बोलते हैं sometimes no bond resonance, because हम देखते हैं यहाँ पर there is no bond between carbon and one of the hydrogen atoms, then alpha carbon and one of the hydrogen atoms। So because of this reason it is called no bond resonance। So this effect was, first of all, सबसे पहले ये effect जो है it was developed by, this concept was developed by Becker and Norton था इसका नाम, Becker and Norton, and the effect was named after them as Becker-Norton effect। इसको हम कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज Becker-Norton effect भी बोलते हैं इसको, दिस हाइपर कॉन्जुगेशन को। नाउ लेट अस टेक, अगर हम लेंगे अब हाउ these sigma electrons जो sigma electrons of the Hc bond, how they interact with the atom having unshared p orbitals या having empty p orbitals या unshared p orbital। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे उसको समझने के लिए। we'll take CH3 CH2, this is कार्बोकेटाइन है, ये इथाइल कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन, ये इथाइल कार्बोकेटाइन है, इथाइल कार्बोकेटाइन। चलिए इसका हम एग्जांपल ले लेंगे, इस इथाइल कार्बोकेटाइन का एग्जांपल ले लेंगे। सो दिस इज, so we'll take here, this is CH3, this is CH3, so we write here, अगर हम ऐसे लेंगे CH और H like this, ये CH3 है। अब ये CH2 है, C एक साइड H इसका, दूसरे साइड पे H। अब इस पे एक होता है अनशेयर्ड MTP ऑर्बिटल होता है इसका, ये हो गया MTP ऑर्बिटल, यहाँ पर पॉजिटिव, ये MTP ऑर्बिटल होता है यहाँ पर, दिस इज MT2P ऑर्बिटल होता है, 2P ऑर्बिटल MT होता है, ये अनशेयर्ड जिसको बोलते हैं, ये अनशेयर्ड होता है और MTP होता है। अब क्या होगा, ये जो ये वाली बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, दिस इज Hc बॉन्ड, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये मीन दिस बॉन्ड इंटरेक्ट विद दिस। सो इस तरह हो जाएगा ये हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम ऐसे लिखेंगे, अब ये इंटरेक्ट कैसे करेगा, सो वी राइट लाइक दिस, दिस इज HCH सिंगल बॉन्ड C, दिस इज H, ये पॉजिटिव चार्ज। So this bond will come here, we'll get a structure like this, this is CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बनेगा H, डबल बॉन्ड CH2। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड Hc बॉन्ड, सो विल गेट ए स्ट्रक्चर हियर CH, यहाँ पर H पॉजिटिव, दिस इज H, डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन से जब ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये जो ये पॉजिटिव चार्ज होगी, ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सो विल गेट वन मोर स्ट्रक्चर लाइक दिस, वन मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये यहाँ आएगा। सो विल गेट CH, दिस इज H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH2।
ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर खत्म हो गई, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब इससे क्या मतलब है, यहाँ पर जो ये ओवरलैप हो गया ना, टाइप ऑफ ओवरलैप यहाँ पर दिस, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा इससे, ये कार्बोकेटाइन से स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि ये जो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगी इस ओवरलैप से। जब ये ओवरलैप होगा बिटवीन दिस सिग्मा ऑर्बिटल व्हिच कंटेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस एमटीपी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटाइन। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट, जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, स्टेबलाइज क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ये पॉजिटिव चार्ज को। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस CH बॉन्ड जो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस CH बॉन्ड, वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, दिस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी उसको डिस्पर्स करेगा। जब वो डिस्पर्स हो जाएगी, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगी, दैट मीन्स इट विल अटेन स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी अटेन करेगा। अब मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अब जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप था अटैच उसको, अब जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यानी मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, more will be the hyper conjugation interaction and more will be the stabilization of the carbocation. Therefore, इसी बुनियाद पे हम बोल सकते हैं, इसी बुनियाद पे हम बोल सकते हैं, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है CH3 like this C, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, it is more stable than secondary CH. Secondary is more stable than primary. ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्यों, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। 3 अल्काइल ग्रुप्स का मतलब है इसमें 9 कैनोनिकल क्लस्टर पॉसिबल है, इसमें 6 कैनोनिकल क्लस्टर पॉसिबल है, इसमें 3 कैनोनिकल क्लस्टर पॉसिबल है। सो जितने नंबर ऑफ कैनोनिकल क्लस्टर ज्यादा होंगे, उतनी इंटरेक्शन, हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन ज़्यादा होगी और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। सो इसका मतलब है टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सो वी कैन explain the stability on the basis of hyperconjugation. So this was about hyperconjugation. Hyperconjugation, I have already told you that it is one of the electron displacements of the covalent bonds. So we have 3 more we have 3 more these electron displacement effects of covalent bonds: inductive effect, electromagnetic effect, and resonance effect or mesomer effect.